So today is the International Nurses Day. My congratulations and also my salutations to the nurses all over the world. Thank you, sir, our Honorable HFM, for giving us time today. And I must acknowledge that the very word nursing actually is also a verb, is also an adjective. I think it's also a noun. So that only shows that how important it is, and especially in the times that we are now going through. I don't know what we would have done without our nurses. Of course, Florence Nightingale is one that we have all grown listening wonderful stories about, stories of sacrifice, stories of selfless devotion, and stories of morality and selfless service. So I commend all the work that our nurses are doing. And though nursing profession has been for very long, associated with the female gender, but increasingly there are male nurses also. I'd like to commend them also, because we have seen the kind of work they have done in bringing our evacuees from Wuhan or from whatever difficult places. So I can just say that as Health Secretary, I feel very humble and I feel very proud of the services rendered. And I would also like to say that please stay safe, stay protected, and whatever little lapses that we get to know, at least at our level, we try to also rectify them. And we are there for you, and we couldn't have done anything without you, is what I would like to say. Thank you. So now I think there is a movie. Responding to the needs of the people during this pandemic with guidance from my hospital administration, and I am very much proud to be a nurse. मैं और हमारा परिवार उपस्थित तीसरी खातिर खुदरी जान जोखिम में डाल योद्धाओं की जिया एक और जंग में कोरोना के खिलाफ जुट रहा है। मानने अपने नर्स होने पर गर्व है। Hi everyone, we are nursing Shawardi Hospital and we are taking care of COVID-19 patients who are really busy. नमस्ते, शुभ संध्या, मम नाम मीनाक्षी गौतम, अहम पीपुल चिकित्सा केंद्र भानपुर भोपाले क्वारंटाइन केंद्रे कार्यं करोमि। मानसिक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही हूँ और मैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगातार काम कर रही हूँ। नमस्कार, मैं नेहा नौटियाल जी, मैं सिक्स में कार्यरत हूँ। विगत दिन मैं कोविड वार्ड में कार्यरत हूँ, हॉस्पिटल मैं अर्जुन चौधरी PGI चंडीगढ़। कोरोना पेशेंट की केयर करते समय हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, पर जब पेशेंट सामने आते हैं तो सब प्रॉब्लम्स को भूलकर पेशेंट केयर करते हैं। నేను కరోనా योद्धाలు विनाशक खेळ पाहताय, कोरोनाचे आहे, हॉस्पिटलमध्ये तयार आहे, नर्सेस नाव घेऊ. आय एम अ कोरोना वॉरियर. ಹಾಯ್, ನಾನು ವಿದ್ಯೆ. ಇಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಹೋರಾಟ અત્યારે કોરોના
ಆಯದೆ ಬಹಳಧಿകം ಅಭಿಮಾನಗೊಳ್ಳಲು ಸಂತೋಷವಿದೆ. I am really proud to realize and wishing you all a happy Nurses Day. The training and webinars were conducted by our hospital, DNA and RJHS Bangalore, which was very helpful for us to upgrade our knowledge and skills on personal protective measures. चलिए अब इंटरेक्शन के लिए समय रखा गया है। आप लोग आने मंत्री जी से कुछ संवाद एक बार सबका परिचय, वैसे तो आई नो मोस्ट ऑफ यू, लेकिन फिर भी ज़रा दलीप जी सबका ज़रा एक बार एसोसिएशन के हिसाब से परिचय करें। दलीप जी तो हैं यहाँ प्रेसिडेंट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, भारती जी हैं, और ये लेफ्टिनेंट कर्नल सरजीत कौर जी। अच्छा ठीक है। आप सेक्रेटरी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो अभी कहाँ पर काम कर रही हैं? तो वैसे कहीं पे अच्छा बेस हॉस्पिटल लखनऊ से अभी इंडियन नर्सिंग काउंसिल में एक तरह से डेपुटेशन पे फुल टाइम यही काम कर रही हैं नर्सिंग काउंसिल का। अच्छा, रहने वाली कहाँ की हैं? देहरादून की। वेरी गुड। अच्छा, पुराना जी आप तो सबसे पुरानी हो हैं। हाँ, 40 साल से कर रहा हूँ। मेरा ख्याल से जब मैं दिल्ली में था तब बैठिए आराम से रिलैक्स होके, कोई ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक ये तो आप तो अभी कहाँ पर हो? अभी तो रिटायर हूँ सर, बस यही कर रही हूँ फेडरेशन का काम। लेकिन यहाँ से तो रिटायर नहीं हुए ना? मैं RML से। ये सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट से तो रिटायर नहीं हुए हैं? ये पोस्ट पे तो हो ना अभी? हाँ, ये सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट में हाँ, हूँ। वही तो कह रहा हूँ। जब लोग रिटायर करेंगे तो हो जाऊँ। अच्छा, अभी लोग रिटायर करने को तैयार नहीं है आपको, जैसे दलीप जी को रिटायर करने को तैयार नहीं है, ऐसे आपको भी तैयार नहीं है। कोई बात नहीं सर, जब तक होगा जरूर करूँगी। लास्ट पोस्टिंग कहाँ की थी? मेरी RML में ही थी सर, वार्ड 5 में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अभी सबसे पहले जो कोविड वार्ड बना, उससे पहले स्वाइन फ्लू बना, उससे पहले डेंगू बना, उसकी नींव मैंने ही रखी थी। मैंने ही शुरू किया था। आई वॉज इन चार्ज ऑफ दैट वार्ड। और उसके बाद इतना सब कुछ मैनेज किया, और वो आज तक इतना अच्छा चल रहा है कि आप कोई भी डिज़ास्टर आता है तो वार्ड 5 को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है। तो बहुत हाँ, बहुत पुराने हो, बहुत अच्छे लोगों को ट्रेनिंग दी है और उनको सिखाया ऐसे कैसे मैनेज करना है। बात तो सर वो मैनेजमेंट की होती है कि आप कैसे मैनेज करोगे, कितने सामान में करोगे, क्या करोगे, दैट इज थिंग। तो अभी कहाँ रहते हो? अभी मैं पीतमपुरा में रहती हूँ सर। आप हमारी कॉलोनी में भी कई दफ़ा आए। आप तो हमारे वोटर भी हो। मैं कहते रहे आप MD ब्लॉक में बहुत दफ़ा आए गुप्ता जी का। अब मैं उसी कॉलोनी में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड मिले हैं आपसे। हाँ नहीं मैं हाँ अच्छा सर, मैं और कुछ 2 लाइन और कहना चाहती हूँ। इलेक्शन के समय जब वोट मांगे जाते ना, तब बिल्कुल एकदम समझ नहीं आता कि इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, किधर देख रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए उस समय इतना डिटेल में परिचय का समय नहीं होता है ना। लेकिन अभी तो मैं आपको ये मास्क के कारण पहचान नहीं पाया हूँ, वरना तो जब मैं दिल्ली में था हेल्थ मिनिस्टर, तब भी आपसे बहुत बार मुलाकात हुई है। हाँ बहुत दफ़ा हुई है। हाँ सर, ये मैं सबसे पहले तो मैं WHO को थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन्होंने नर्सेस का ईयर जो नर्स फॉर मिडवाइफ मनाया, मतलब इसको डिक्लेयर करा और सब मना रहे हैं। और दूसरा मैं सबसे आपको थैंक्स करती हूँ कि आपने हमारे जो अवार्ड्स मिलते हैं उनको बढ़ा दिया जी। जो पिछले ये उस पर आपने 51 कर दिए, बहुत खुशी हुई। 51 हो गए ना? हाँ, अभी होएंगे। अब इसके बाद भगवान करे जल्दी से ये हो जाए। हमने फाइल पे भी कर दिए, सब जगह कर दिए हमने। ये हमारे लोगों ने 24 घंटे में कर दिए थे जब हमने मुझे पता सर। 24 घंटे में कर दिया था। अच्छा, दूसरी बात सर ये है कि मैं इतने एश्योरेंस दे सकती हूँ क्योंकि इस वक्त पूरे इंडिया की नर्सेस मेरे कांटेक्ट में हैं कि आपको काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जी। और ना कोई शिकायत आएगी। कुछ देखो जो कमियां पेशियां मैडम सेक्रेटरी ने बोला वो तो हर जगह होती है। घर में 4 मेहमान भी अचानक से आ जाते हैं तो मैनेजमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम आती है जी। तो उसको जब भी कोई मिलता है सर इमीडिएटली मैं तो कोशिश करती हूँ कि रिजॉल्व करूँ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैडम। हाँ नहीं, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है मिनिस्ट्री से और मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। और इतना मैं ये बता दूं सर कि हमारे नर्सेस ने क्या वो पहले हेपेटाइटिस आया, एड्स आया और डेंगू आया, स्वाइन फ्लू आया और अभी आया, सबको बड़े अच्छे से मैनेज करा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कि मेरे इतने साल की सर्विस में ये इसमें पहली बार मिनिस्ट्री से इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली है। उसके लिए मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी हमें नर्सेस का ध्यान रखा जाएगा जैसे अभी आप रख रहे हैं। बिल्कुल, आपके बगैर हम लोगों का कोई गुजारा नहीं किसी तरीके से। सर वो तो है ही सर, आप तो डॉक्टर हो बेशक, पर आप हेल्थ मिनिस्टर हो, इसलिए हम भी आप ही के उसमें हैं शरण में। नहीं, हमें आप पे सब पे गर्व है। अच्छा, ये मिसेज एनी कुमार, हाँ कैसे जी, अभी आजकल कहाँ पर हो आप? Sir, I am working with the Lady Gadi College of Nursing as a senior faculty. And this is a elected post as vice president. उधर जब उधर फंक्शन पे गए थे तब आप आए थे वहाँ पे, राजकुमारी अमृत कौर वाले फंक्शन पे? नहीं, वहाँ आप नहीं थे। मैं आई थी सर, मैंने देखा। आप तो थी, मिले थे। नहीं, उसमें सारे आपकी जितनी पुरानी नई सारी जितनी सीनियर्स थी ना, मुझे सब मिली थी वहाँ, इसलिए तो इसलिए मैंने पूछा कि वहाँ पे आप। सर याद होगा जब दिल्ली की काउंसिल बनाई थी तब आपने इनॉग्रेट किया था। देश में सबसे पहली नर्सिंग काउंसिल मैंने बनाई, मुझे पता है, 25 साल पहले मैं आपके इनॉग्रेशन में थी और मैं पहले नॉमिनेटेड मेंबर भी थी उसमें। TNA had contributed around above 50 lakhs rupees PPE to all the nurses during this crisis. And also we are representing the issues faced by the nurses all over the state. We have 34 state branches and more than 4 lakh members all over the country. And we have initiated the formal education, nursing education in India. It is a 111 years old association. Very good. Very good. Thank you sir for all the support and we request you to continue it. अच्छा, ये थैंक यू। ये अजीनस जी हैं? हाँ, यू आर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये आप कहाँ पे हो आजकल? सर मैं TNA हेडक्वार्टर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हूँ, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, हम 3 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं सर TNA हेडक्वार्टर्स में। भी करण हमारा सेक्रेटरी जनरल है और मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और संगमित्रा सावंत असिस्टेंट सेक्रेटरी एट मैक्सला नगर। 4 nurses we are working for the welfare of the nurses through TNA. Sir, our president is based in Kerala. He has sent हाँ नहीं ठीक है, obviously. अच्छा, गीता जी। सर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एज एएनएम पोस्टेड हूँ केशवपुरम डिस्पेंसरी में। अच्छा, वेरी गुड। सर हम लोग अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स करते हैं, जैसे आउटरीच सेशंस करते हैं, एंटीनेटल केयर देते हैं, पोस्टनेटल। अरे आपको एएनएम जो क्या करती है तो आप तो बैकबोन हो भाई, हमें बताने की जरूरत है। फैसिलिटेटर का काम भी करते हैं और सर हाई रिस्क प्रेगनेंसी PMS से अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स करते हैं सर। और कोविड-19 में सर अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन सर मैं बहुत ज़्यादा दिल लगा कर हम करेंगे ना तारीफ, आपको क्या करनी है? सर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती हूँ सर मैं खुद से, और उसके बाद उनको जो उनका फॉलोअप है, अभी मैं कंटेनमेंट जोन में थी सर 21 डेज तक मैंने अपने पूरे ब्लॉक को डेली फ़ोन करके उनको फॉलोअप करती थी। और उसके बाद उनको सर मैं फ़ोन पर ही काउंसलिंग करती हूँ, जो उनके अंदर थोड़ा स्टिग्मा और डर है। कुछ ऐसे भी है 1-2 पेशेंट जिनकी वाइफ प्रेगनेंट है और वो LNJP हॉस्पिटल में है, हस्बैंड पॉजिटिव है, वो घर पर है, तो उसके पास तो कोई भी नहीं है। तो मैं उनके साथ, मेरी वहाँ से पोस्टिंग हट गई है, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ फ़ोन पे कनेक्टेड रहती हूँ। और सर फिर जो टाइम बचता है तो मैं घर में मास्क बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ कि होममेड मास्क की क्या इंपॉर्टेंस है। और सर मैं अपने स्लम में जाके हैंड वॉशिंग खुद से करके दिखाती हूँ सर, अपना पानी ले जाकर, अपना साबुन ले जाके स्लम के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जीत पाएँ सर, आपके
सुपरविजन में सर। कहाँ रहते हो आप सर केशवपुरम? मैं सर केशवपुरम तो वो मेरी तो डिस्पेंसरी हो हाँ गई। जी सर, घर मेरा मोती नगर में है सर, मोती नगर। आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल की बैक साइड में। अच्छा अच्छा, ठीक, वेरी गुड। अच्छा, ये मिस थ्रेसा, यस आप जो है ये प्रेसिडेंट दिल्ली चैप्टर सोसाइटी ऑफ मिडवाइफ्स ऑफ इंडिया, अभी कहाँ पोस्टेड है? कहाँ पे? अच्छा, RML में है। अच्छा, We are having 21 chapters across the India, and they are working very hard for the respectful maternity care, especially for quality improvement, skill training, and during this COVID period, all educators and the midwives, they are going to the different area and teaching them for the hand washing, then they distributed food, distributed the masks, and they are delighted to phone and otherwise they are encouraging the nurses who is working, especially in the labor rooms. And our focus is the quality care, but apart from that, at the such situation, we are helping and linking with the various people, even the linking the ANM, ASHA, they are linking with the ASHA who are there, ANM who are there. So it is not. Currently, the president is based in Calcutta, so she sent a regard also to you, sir. So thank you for this opportunity for this OVN. Especially we are looking for the military cadre also, which we are working for the past 2 years, more than 2 years. So that is yet to be implemented. So that it is once the midwifery qualities improve, we can change the even the maternal health of India. So they are the backbone. So we are looking for that and also to get the COVID has come, now the focus is diverted. बहुत बढ़िया। और भी जिनका परिचय अगर इधर जो ये नर्सिंग एसोसिएशन से कोई और आई है तो परिचय कराइए अपना। यस सर, मेरा नाम कैप्टन संध्या शंकर पांडे है। हाँ सॉरी, क्योंकि इसमें नाम था नहीं इसलिए मैंने आपको ये कहा, बोली। कोई बात नहीं। संध्या शंकर जी। संध्या शंकर, सर आई एम द नेशनल सर मेंबर ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी of Association of Nurse Executives India. Okay. And in addition, sir, I am the group nursing head for Fortis Healthcare Limited, sir. Network of almost 31 units. अभी कहाँ पर हैं आप? सर मैं Fortis headquarters में काम करती हूँ. Fortis Healthcare. अच्छा। मैं उसकी group nursing head हूँ सर. Very good. And apart from that, sir, Association of Nurse Executives India की दिल्ली और उत्तर प्रदेश चैप्टर्स की हेड हूँ। ये एक एसोसिएशन जो थोड़ी नई है और हैज़ गॉट ऑलमोस्ट मोर देन 600 मेंबर्स एंड इट इज़ प्रेजेंट इन 11 स्टेट्स नाउ, नॉट इनटू द अदर थिंग्स बट इट इज़ मेनली फोकसिंग ऑन एडवोकेसी एंड एम्पावरमेंट एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग ऑफ नर्सेस। गुड। हमारे 2 मेंबर्स अभी थोड़े दिन पहले जब मोदी जी ने निमंत्रित किया था डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम को, तो उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे एंड इट वाज नाइस टू सी एडवाइजरीज में दोज विद थॉट्स एंड आइडियाज़ वर पर्कुलेटिंग। एंड एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, बिकॉज ऑफ दीज रिकॉग्निशंस एंड एक्नॉलेजमेंट विच इज़ कमिंग इन एंड मल्टीप्लाइड दी enthusiasm and motivation of nurses, this has actually worked towards the way world and society looks at nurses, number one. And second is this has actually worked towards a complete image makeover of nursing. Probably we will have more able and capable people coming in, joining the profession, and probably the profession would evolve towards evolving from being a workforce to a professional now, the way the developed countries move towards. And अगर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की बात करी जाए तो प्रोबेबली ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड यहाँ पे क्रिएट हुआ है नर्सेस के साथ इस डिज़ास्टर सिचुएशन में काम करते हुए, जब वी हैव एक्चुअली इवॉल्व थ्रू इनोवेशंस, लॉट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, लॉट ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, लॉट एंड मैनेजिंग फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज come whatever may happen in any situation, be it about PPE, be it about mass patients coming in, be it about lot of suspects coming in, be it about immediate clinical decisions taking in. That has multiplied the confidence of the bedside nurses on taking immediate clinical decisions. For the first time they have started to check back guidelines क्या है, guideline में ये लिखा था नहीं, every nurse actually standing with the criteria of the snapshots of the guidelines on how to segregate the patients and manage. So it is actually working towards empowering because their knowledge is literally
got uplifted. They have innovated many ways which the organizations have actually honored and made it a guideline and a protocol which converted into SOPs for everybody, which many other small hospitals also have taken up. We were probably the pioneers to start with one of the best practices of nursing scheduling in COVID areas for 6-hour scheduling, preventing complete burnout and infection, risk of infection in the nurses. I'm glad to say we're hardly nominal nurses when they're working across 28 hospitals, nearly 12 to 1300 nurses completely dedicated to COVID patient management. These things have really worked very well with us. Thank you. Once you're completed. No, ma'am, over to you. I just want to say that I hope all of you know that I would say nurse practitioner is one that we have been advocating, and we have nurse practitioners in our country also. In our health and wellness center, sir, as you know, that nurse practitioners, now we are taking directly the new pass outs are eligible. BSc nursing will be eligible to come and serve also as community health providers. And sir, we have carried out modifications in the syllabus itself so that this can be done. So that is another very, very important role which our nurses will be playing in future. So just want to keep it in mind that when you talk about it, please talk about this, because this is a revolution actually. The 150,000 sub-centers under Ayushman Bharat rolled out the health and wellness center. In that, all the, as Madam was telling that, the 150,000 community health officers are required. So, to train community health officers, it will take time. So, what we have done is, the BSc nursing syllabus, we have amended the syllabus so that all the protocols which have been laid out in the community health officer in the 6-month program is integrated into the BSc nursing. So, from this year, anybody who is coming out straight away from the BSc nurse, they can be appointed as a community health officer. So, in that way, the majority of the states have opted the nurses as a community health officer. The only thing is, in this we need to further is legal empowerment. Some of the procedures which the treatment of minor ailments, administration of medications which will be there. So we are working with the ministry to take forward how they can be empowered for the treatment of minor ailments and substance abuse. Good. ये हमारे ऑफिस में है सर, यहाँ पर ये रहती कहाँ है ऑफिस में तो काम है। अच्छा, RML के कैंपस में ही रहती है। और तो कोई नहीं नर्सिंग प्रोफेशन से सबको, सीनियर्स को तो सब पहचानती है ना इधर जो लोगों को हैं। इति सूदान जी हैं और अरुण सिंगल जी हैं, निपुण जी हैं, सब इनको तो पहचानते हैं सब लोग। चलिए, इसके बाद कोई और आपकी एक फिल्म और है शायद, है, दिखाइए। हाँ, बताइए दिखाइए। Years ago, she lit a flame that made Florence Nightingale a symbol of selfless service. When I'm no longer even a memory, just a name, I hope my voice may perpetuate the great work of my life. God bless my dear old comrades of Balaklava and bring them safe to shore. Her life's work continues to inspire nurses across the globe, who are on the front lines of the battle against one of the biggest ever threats faced by humankind, and are earning acclaim and winning hearts as Corona warriors. I made this kheer because I'm proud to have a Corona warrior as my next door neighbor. We are proud to be parents of a daughter. Who is a Corona warrior? We can and we will win the war against coronavirus. Oh yeah,
we'll beat the virus because we got what it takes. A passion to save lives. A commitment to be thorough professionals. And maintain round-the-clock efficiency. This Nurses Day is very special because it coincides with the 200th birth anniversary of Florence Nightingale, as well as declaration of year 2020 as Year of Nurse and Midwife by World Health Organization. The world is celebrating nurses much more than what WHO wanted, because nursing heroes are fighting out the battle in the brave battlefields of COVID-19. TNA salutes them, respects them and thanks them for the immense services they provide to the society and world at large. On this Nurses Day, we salute you brave nurses and congratulate you for your services. Thank you very much and all the best. Jai Hind. World Health Organization declared 2020 as Year of Nurses and Midwives to highlight the contribution of the profession and to mobilize support for the profession and to ensure the recognition it deserves. Now with COVID pandemic, our nurses are real heroes, the frontline workers in this great battle. COVID-19, the unforeseen war, is fought with might, confidence and compassion by our frontline health workers and nurses. This fight is unique, and they are the largest group and are on a 24/7 duty. We salute them, we respect them, and we bow our heads in front of them. You so much sense of the nurses all over the country. They are observing this. So we were given us time to release this, and it is appreciated by the President, Council members and all the members and all the nurses all over the country. And I request you. Madam Preeti Sudan ji, Secretary Health, Shri Arun Singhal ji, Special Secretary Health, Nipun Vinayak ji, Joint Secretary Ministry of Health, Shri Dalip Kumar ji, President Indian Nursing Council, Shrimati Bharti ji, Joint Secretary Indian Nursing Council, Lieutenant Colonel Sarbjeet Kaur ji, Shrimati G.K. Khurana ji, Mrs. Annie Kumar, Vice President North Region Trained Nurses Association, Mr. Ajinas AM, Assistant General Secretary General Trained Nurses Association of India, Ms. Geeta Rani, ANM, All India Federation of ANM LHVs, Ms. Theresa Haldani, President Delhi Chapter Society of Midwives of India, Chandya Shankar Pandey ji, and Banerjee, and all other distinguished people sitting in this small room, conference room. I wish we could have organized this function in a big way, but I know that we are joined by at least a few thousand nurses all over the country. This is what I have been told. So I'm very happy that in spite of the COVID catastrophe that is at the moment affecting all of us, and not only all of us but people all across the globe, we have been able to at least pay our humble tributes to all of you officially in an organized manner, though not at a scale that we normally would have wished to do. But thanks all of you, the various associations which are represented here. I know that each one of you is not an individual. You are institutions in yourself, and you have been serving the cause of humanity and the medical profession and helping the patients for years and decades in all forms. Since I have myself
association with the medical profession for over 4 to 5 decades now. It is between 4 and 5 decades. So I have seen from very, very close quarters how the members of the nursing profession, how our ANMs and how our other co-workers in the medical profession, they do the way they sincerely work. This is a very, very important year, and 200 years of Florence Nightingale's birthday. In fact, this is the Jayanti year of Florence Nightingale, and it's very difficult to describe Florence Nightingale in words or sentences. All of us, I think, take inspiration from the sincere, dedicated, committed work that she did, and it is in the fitness of things that we are celebrating this year in a big way. Thanks to World Health Organization also, they have dedicated this year particularly for this issue, and especially for the nursing professionals and ANMs and others, midwives. It's a very, very focused year, and although everyone has appreciated the role of the nursing professionals over many years, I don't think there is anybody in the society who doesn't appreciate the role of the nursing professionals. But in this COVID-19 crisis, I think for the first time in the history, maybe it may be in the history of the whole world, not only India's history, but in the history of the whole world, never ever I can either imagine or I have seen or I can think of that 1.35 billion people of such a vast country like India, they will stop all the work at a particular time. They'll come out of their homes and then start conveying their good wishes, blessings, felicitations in all forms. हमने एक वीडियो पोस्ट किया था ट्विटर के ऊपर जो इस भावना को व्यक्त करता है। एक लगभग शायद देखने से तो 80 साल से कम नहीं लगती थी, जो श्रमिक के रूप में काम कर रही हैं और फील्ड में शाम को 5 बजे एक 80 वर्ष की श्रमिक, हमारी माँ के समान, उसने उसको कुछ नहीं समझ में आया उनको, तो एक उन्होंने छोटा सा एक उसका लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और जो ईंट का वो रखा हुआ था पूरा का पूरा, जो है जैसे ईंटें रखी होती हैं हज़ारों, उसके ऊपर वो उसी लकड़ी के टुकड़े से ऐसे 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 कर रही थी। मतलब दैट इज़, यू कैन से द एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेंटिमेंट दैट द कंट्री हैड, कि वो उतनी आईक्यू वाली एक 80 साल की श्रमिक माँ के समान हम लोगों के लिए, उसको भी उतना उत्साह था कि मैं अपने पता नहीं कौन से गांव में किस जगह पर वो क्या काम कर रही होंगी, लेकिन वो भी ऐसे ऐसे करके जो है खटखट 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 कर रही थी। इट वॉज सच ए टचिंग सीन। तो शायद आपको जितना सम्मान और जितनी मन की भावना और उद्गार और जो लोगों ने व्यक्त किए हैं, वो शायद मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं किसी जगह पे। उसके लिए हम आप सबकी ओर से, अपने सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स की ओर से आज के इस अवसर पर देश के 135 करोड़ लोगों को धन्यवाद भी करना चाहते हैं, और अपने प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से हम
अभिनंदन करना चाहते हैं कि उन्होंने एक प्रकार से इतनी बड़ी अपील की, और उस अपील को शायद देश में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने उस अपील को फॉलो ना किया हो। 3 साल के छोटे बच्चे का भी आपको वीडियो दिख गया होगा, और मैंने अभी आपको 80 साल की जो है माँ का भी जो है वीडियो का आपको उल्लेख किया है। इसलिए असाधारण परिस्थितियों में असाधारण योग्यता, क्षमता, जज्बा, ईमानदारी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, मतलब कितने भी शब्दों का इस्तेमाल करा जाए वो कम है। हमारे पास तो शब्दावली में वो अच्छे ऐसे शब्द नहीं कि जिससे हम उन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करें। और ऐसे डॉक्टर मैं ये बोलता हूँ कि हम लोग जब पढ़ाई करके इंटर्नशिप शुरू करते हैं तो वार्ड में बहुत सारी चीज़ें तो आप ही लोगों से सीखते हैं। इंजेक्शन कैसे लगाना है, सबसे पहले अच्छी तरीके से इंजेक्शन लगाने की प्रैक्टिस जो है इंजेक्शन रूम में मुझे किसी हमारी नर्सिंग प्रोफेशनल ने कराई। आईवी कैसे लगाना है उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस जो है, क्योंकि कोई डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर को इतना समझाने का कहीं पे टाइम नहीं होगा, और जो एक नर्स उसको अच्छी तरीके से समझा सकती है, प्रैक्टिस करा सकती है, अपने एक्सपीरियंस से बता सकती है, वो नर्स के हाथ से जो सीखा हुआ है वो इंजेक्शन लगाने की टेक्निक या दूसरी चीज़ें, और भी इतने सारे हम वार्ड में काम करते हैं। डॉक्टर ने तो पढ़ाई की है, उसके बाद वो सारी चीज़ें देखी है, उसके बाद वो राउंड लेने आता है और उसके बाद वो उसके ऊपर एडवाइस देता है, ऑर्डर करता है, और सीनियर डॉक्टर है तो उसके ऑर्डर को जूनियर डॉक्टर जो है फाइल पे लिखता है। लेकिन उसका जो अगले 24 घंटे का जो शेड्यूल है उसको इम्प्लीमेंट करना, हर मिनट एक मरीज़ के ऊपर निगाह रखना, मरीज़ की तकलीफ़ में उसके साथ साझा होना, उसकी दिन भर की, दिन की, रात की, 24 घंटे की तकलीफ़ को उसी समय इंस्टेंटली दूर करना, ये मैं समझता हूँ कि ये शायद बहुत असाधारण किस्म का काम है। ये रूटीन सरकारी नौकरी नहीं है, और हमारे जो कोई एक्सेप्शन छोड़ दे तो एक अलग बात है, लेकिन सब लोग इसको बहुत भावना से करते हैं, जज्बे से करते हैं, करुणा भाव से करते हैं, संवेदनशीलता से करते हैं। इसलिए ये आज जब हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल्स को सल्यूट कर रहे हैं, आपके सभी साथियों को, तो मुझे अभी ख्याल आया, मैं देख रहा था यूँ तो इस कोविड के क्राइसिस में सारे देश में हमारे बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारी हमारी नर्सेज, बहुत सारे हमारे दूसरे जो पैरामेडिक्स हैं, अस्पताल में बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी के ऑफिसर्स, बहुत सारा हमारा सैनिटेशन का स्टाफ, और अस्पतालों में व्यवस्था मेंटेन करने के लिए हमारे बहुत सारे पुलिसकर्मी, ये बहुत सारे भाई बहन हमारे इसके कारण जो है कोविड के कारण बीमार भी हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं, वो भी संख्या अच्छी खासी है, कोई ना के बराबर नेग्लिजिबल नहीं है, जिन्होंने अपने प्राण भी जो है इसके लिए दिए। मैं समझता हूँ एक प्रकार से उन्होंने कोविड के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है उसमें अपनी शहादत दी है, क्योंकि जितने भी लोग कोविड के ख़िलाफ़ जंग में उतरे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा तो डॉक्टर होने के नाते, नर्स होने के नाते, ये तो सबसे ज़्यादा उनको ही पता है कि मैं किस प्रकार के ख़तरे के साथ जो है जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो है उस ख़तरे का सामना करके जिस प्रकार से हमने अपनी कोविड के ख़िलाफ़ जंग को लड़ा है, और उस जंग की अंदर हमें
इतनी सफलता अगर मिली है कि भारत की सफलता के बारे में सारे दुनिया के लोग चर्चा कर रहे हैं, भारत के अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं उससे जब लोग आकलन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इतना बड़ा देश होते हुए भी शायद हमें तकलीफ़ दुनिया में सबसे कम हुई। छोटे छोटे देशों को भी हमसे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो इस सब का जो श्रेय है वो हमारी जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, दूसरे स्वास्थ्यकर्मी हैं, इनको जाता है। मुझे अभी किसी ने एक सवाल पूछा था कि एक इंटरव्यू में वो जवाब मैंने लंबा दिया था, तो वो उसमें उन्होंने कहा कि आजकल कोविड के टाइम में आपको सोने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, या हाउ डू यू रिलैक्स। तो मैंने उनको जवाब ये दिया, मैंने कहा भाई मुझे सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन तब महसूस होता है जब मैं अस्पताल में जाता हूँ और मैं वो जो फ्रंट लाइन पे हमारे कोविड वर्कर्स, कोविड वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स लड़ रहे होते हैं, हमारे डॉक्टर, नर्सेज, और वहाँ रोज़ इतनी तकलीफ़ हो रही होती है। उनके कई साथी भी बीमार हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सबसे प्रोएक्टिवली पूछता हूँ, भाई आर यू हैप्पी, आप खुश हैं, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तो आई सी कि एवरीबॉडी इज़ चीयरफुल, एवरीबॉडी इज़ स्माइलिंग। किसी के चेहरे पे कोई मुझे दुख नहीं नज़र आता, किसी के चेहरे पे कोई टेंशन नहीं नज़र आती, हर एक को स्माइल करते हुए ओवर उत्साहित मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा मुझे उसी से रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब दैट्स अ मोमेंट दैट आई एन्जॉय। उससे सारी थकान जो होती है वो दिन भर की उसी बात से जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये आज का अवसर पे मैं अभी देख रहा था कि 3 लोगों का विशेष रूप से मुझे स्मरण आया आपके प्रोफेशन से। एक स्टाफ नर्स पुणे की ज्योति विठल रक्षा जी, इसी तरह से एक अनीता गोविंद राव राठौड़, ये असिस्टेंट मैट्रन थी पुणे में, और इसी तरह से एक हमारे दिल्ली में ESI हॉस्पिटल झिलमिल, ये तो हमारे ट्रांस यमुना में हमारे घर के पास ही है, बहुत बार मुझे उस अस्पताल में भी जाने का मौका मिला। ये मिसेज़ मार्गरेट नर्सिंग ऑफिसर थी। ये 3 लोगों का, और भी बहुत लोग बीमार हुए हैं, बहुत सारे लोगों का हम लोगों को जानकारियाँ, अभी तो इस तरह की जानकारियाँ संकलित करने के लिए भी कोई ऑर्गेनाइज्ड ढंग से हम लोग, लेकिन जहाँ भी जब पता करते हैं तो बहुत सारे नाम नए नए पता लगते हैं। इन्होंने अपने एक प्रकार से इनके प्राण चले गए कोविड-19 के ख़िलाफ़ जंग को लड़ते लड़ते। तो आज के इस अवसर पर उनको भी हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनकी पवित्र स्मृति को भी याद करना चाहते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को भी नमन करना चाहते हैं। आप सब प्रोफेशन के लोगों की ओर से उनके परिवारजनों को भी हम लोग संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। जहाँ तक हमारी सरकार का प्रश्न है, हमारी सरकार का प्रोफेशन के प्रति जो कमिटमेंट है हाईएस्ट लेवल पे क्या है, उसका मैंने अभी आपको उल्लेख किया। प्रधानमंत्री जी ने तो एक अपने भाषण के अंदर जो प्रोफेशन के लोग हैं उनका कंपैरिजन उन्होंने भगवान से कर डाला। और मुझे ध्यान है कि जब ये चारों तरफ थोड़ी थोड़ी घटनाएं बढ़नी शुरू हुई कि मेडिकल प्रोफेशनल्स को लोग जिसे कहते हैं कि अपमानित कर रहे थे, कई जगह पर उनके ख़िलाफ़ फ़िज़िकल वायलेंस की कोशिशें हुई, इस तरह के नज़ारे जब टेलीविज़न पर आने शुरू हुए तो प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं पहल करके उन्होंने मीटिंग वगैरह बुलाई, अध्ययन कराया, और 100 साल से भी ज़्यादा पुराना जो एपिडेमिक एक्ट था उसके अंदर परिवर्तन कराया, अमेंडमेंट कराया। आज देश में अगर कोई भी किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के साथ उसको ऑस्ट्रेसाइज करे, उसको अपमानित करे, उसको किसी भी प्रकार से स्टिग्मा के घेरे में लाने की कोशिश करे तो 7 साल तक की उसको सज़ा हो सकती है। ये कानून बनाया और अभी कई लोगों के ख़िलाफ़ देश में
जिन्होंने इसके बावजूद भी प्रोफेशन को अपमानित करने की कोशिश की है, समाज में लोगों के खिलाफ मुकदमे बने हैं। इतनी विषम परिस्थितियों के अंदर लोग काम कर रहे हैं, उनके प्राण को, जान को खतरा भी हो सकता है। तो इसके कारण जो है सरकार ने ग्रास रूट लेवल तक के भी, यानी ग्रास रूट लेवल पे एक आशा वर्कर तक की भी उसमें चिंता करते हुए एक बड़ा इंश्योरेंस का जो हेल्थ इंश्योरेंस है, सारे अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स का नीचे तक सरकार ने किया कि भगवान ना करे किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए तो उसके कारण उसके परिवार को कोई, जो उसका परिवार का देखने वाला है वो ना रहने पर कष्ट ना हो, तो 50 लाख रुपए तक का जो है बीमा हर एक साधारण से साधारण, बड़े से बड़े डॉक्टर का भी उतना, और छोटे से छोटे एक आशा वर्कर के लिए भी ये भी किया। और शुरुआती दौर के अंदर अगर आपको ख्याल हो कि थोड़ा थोड़ा ये बातें आती थी कि जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो एक्सट्रीम जगहों पे काम करते हैं अस्पतालों के अंदर, उनके लिए जो प्रोटेक्टिव गियर है ये पर्याप्त मात्रा में शुरुआती दौर के अंदर 3 महीना पहले ये बातें आती थी कि उनको शायद उनके लिए उतनी मात्रा में चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि सारे दुनिया में क्राइसिस चल रहा था, चीन में भी क्राइसिस चल रहा था। और कोविड के पहले ये सारी जो व्यवस्था है ये बाहर से हमारे देश में आती थी, इवन उसके लिए लिनन भी भारत में आता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये सारे छोटे छोटे विषयों को भी बहुत गहराई से लिया, अपने कई किस्म के एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए हेल्थ मिनिस्ट्री की मदद करने के लिए। और अभी जिस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट के लिए, प्रोटेक्टिव गियर के लिए 3 महीना पहले इतनी बात होती थी, अभी इसी दौरान हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि 100 से ज़्यादा तो देश में ही इसको बनाने वाले मैन्युफैक्चरर जो हाईएस्ट क्वालिटी का बना सकते हैं वो पैदा कर दिए हैं। अभी 3 लाख से ऊपर जो है पीपीई ऑन एन एवरेज हर रोज़ भारत में बन रहे हैं। हर रोज़ 3 लाख पीपीई हम सारे देश के अंदर भेजते हैं। किसी भी कीमत पर कोई भी हमारा जो हेल्थ प्रोफेशनल है वो छोटी से छोटी जगह पर भी उसको जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जो उसको प्रिकॉशन लेनी है, वो सारी की सारी उसके लिए उपलब्ध होनी चाहिए। और अभी तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हमको बोलते हैं कि अभी हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है, आपने इतने भेज दिए, हमारे सारे गोदाम भर गए हैं। ये मेरे छोटी छोटी बातें सिर्फ इनका उल्लेख इसलिए किया कि सरकार पूरी तरह से हृदय से, मन से, आत्मा से आपके कामों को एप्रिशिएट करती है, उसकी जो सच्चाई है और उसकी जो सात्विकता है और उसकी जो गहराई है उसको ईमानदारी से महसूस करती है और पूरे जज्बे के साथ वो आपके साथ खड़ी है। जिस तरह से आप जज्बे के साथ अपने मरीज़ के साथ खड़े हो, उसी तरह से सरकार पूरे जज्बे के साथ आप सबके साथ खड़ी है और वो चाहती है कि आपके हितों की भी हर प्रकार से रक्षा हो। तो आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत पवित्र दिन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सारे दुनिया का ध्यान आज जो है आपके इस विषय पर आकृष्ट रखने के लिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज इसको 12 मई को घोषित किया है। और इस अवसर पर मैं सारे देश की जो नर्सेज हैं, ANM हैं, मिडवाइफ्स हैं, सभी लोगों को जो है मैं हृदय से बहुत बहुत अपनी ओर से भी शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ज़्यादा गहराई, सच्चाई और सेवा के भाव से, सेवा का भाव तो आपका ट्रेनिंग है, आपका सब प्रकार से जज्बा है, आपका DNA है। और जब आपने
नर्स बनने का, इस प्रोफेशन से जुड़ने का तय किया, तो आपके मन में वो भाव ही होगा जो आपको प्रेरित करता होगा। कोई नौकरी करने के लिए नर्स नहीं बनता कोई, वो भाव होता है तब वो बचपन में जब बढ़ते उसके मन में आ जाता है कि मुझको ये प्रोफेशन के साथ जुड़ना है, तभी फिर वो उस तरीके से जो है पढ़ाई करता है, उस तरीके से इम्तहान देता है, उसी तरीके से फिर वो बीएससी, एमएससी जो भी चीज़ें हैं या दूसरे नर्सिंग के जो कोर्स हैं वो करता है। तो वो जज्बा सब आपके पास है, उस जज्बे का आपने भरपूर इस्तेमाल किया है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी एसोसिएशन के माध्यम से होती हैं जो यंग जनरेशन है उसको ट्रेंड करने के लिए, और आजकल मुझे पता लगा कि बहुत सारे वेबिनार वगैरह भी आप लोग आयोजित कर रहे हो, आपकी एसोसिएशंस के माध्यम से भी हो रहे हैं, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी कर रहे हैं और भी प्रोफेशनल बॉडीज़ कर रही हैं। और आज के इस अवसर पर आपको अगर सरकार की तरफ से भी कोई इस तरह के कामों को अच्छे देश में कोविड के लोगों की रक्षा करने के लिए कोई और भी आपके पास सुझाव हो, तो वो सुझाव जो है आप अरुण सिंघल जी को भिजवाइए, हम लोग उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम सब मिलकर पूरी गहराई के साथ जो है इस कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई को और ज़्यादा लड़े। अभी ज़्यादा दूर नहीं है विजय जो है नज़दीक है, और सिर्फ हमको धैर्य रखना है, और जिस धैर्य के साथ सारे देश ने मिलकर कोविड के ख़िलाफ़ संघर्ष में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, और अभी ज़्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने में। लॉकडाउन में भी कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, घर में रहना है, अपने माता पिता की चिंता करना है, और छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं, साबुन से हाथ धोना है, मास्क को लगा के रखना है हर समय। ये मास्क जो है ये शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मोस्ट पोटेंट वेपन। अभी कल भी एक आर्टिकल आया, 2 अमेरिकन्स ने लिखा है कि इस पूरे कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई में बाकी सारी चीज़ों को भी उन्होंने सेकेंडरी कर दिया, उन्होंने मास्क को सबसे इम्पोर्टेंट कर दिया। और मुझे लगता है कि मास्क अगर आपने लगाया हुआ है तो शायद अगर मैंने मास्क लगाया हुआ तो मेरे आसपास 20 भी अगर कोविड के मरीज़ बैठे होंगे तो शायद मुझे आसानी से वो इन्फेक्शन नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये जो मैसेज है, मास्क का मैसेज है, हाथ धोने का मैसेज है, हाथ को नाक पे, मुंह पे, आँख पे, ये सब चीज़ों पे ना लेके जाने का फेस पर मैसेज है, ये सारे बड़े सोशल डिस्टेंसिंग का 2 गज की दूरी, अब प्रधानमंत्री जी ने बड़े सिंपल भाषा में कह दिया 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखो। तो एक हाथ इधर एक हाथ इधर, तो ये थोड़ा सा आगे कर दो तो ये 2 गज की दूरी हो जाती है। तो ये अगर हम मेंटेन करके रखेंगे तो कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई बहुत अच्छी तरह से जीत पाएंगे। और ये मैसेज जो है ये आप लोगों के माध्यम से, जब सोसाइटी के अंदर जहाँ भी है, मैं पढ़ रहा था शायद कितनी 20 बिलियन से ज़्यादा ये हमारे नर्सेज और दूसरे पूरे दुनिया में हैं, भारत में भी बहुत बड़ी संख्या होगी। तो ये आप सब जब मैसेज दोगे, हम सब के साथ मिलके, सरकार जब मैसेज देती है तो सरकार का मैसेज को बोलते हैं सरकारी है, लेकिन आप लोग भी जब सब जगह पे ये मैसेज दोगे, और खाली दोगे नहीं, उसको स्वयं भी इम्प्लीमेंट करोगे, खाली मैसेज प्रीच करने के लिए नहीं, मैसेज को प्रैक्टिस भी करने के लिए, तो ये हमारा आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा और जल्दी ही हम कोविड के ख़िलाफ़ जो युद्ध है उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज के अवसर पे आप सब यहाँ पर आए हैं, दिलीप जी और आपकी सारी टीम, सभी का मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बहुत ढेर सारी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आपके सबके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आज इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज है और इस पवित्र अवसर पर ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का भी 200 इयर्स उनका बर्थ को पूरे हुए हैं और उनकी आज
जयंती भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेस के रूप में घोषित भी किया है। आज यहाँ हमने स्वास्थ्य मंत्रालय में देश की सभी हमारी प्रतिष्ठित नर्सिंग प्रोफेशन और एएनएम के प्रोफेशन से जुड़ी हुई एसोसिएशंस की राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ और इनके माध्यम से देश भर में लाखों नर्सेज और एएनएम्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपर्क किया। एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया, कुछ वीडियोस रिलीज़ किए, एक पोस्टर रिलीज़ किया और इसके साथ साथ जो इस पवित्र प्रोफेशन से जुड़ी हुई हमारी सभी बहनें और भाई हैं, उनको सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से, अपनी ओर से, पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। आज हमारी नर्सिंग प्रोफेशनल की बहनें हमारे अस्पतालों में, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में फ्रंट से लीड कर रही हैं। फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स की तरह अपने स्वास्थ्य को भी खतरे में डालकर वो काम कर रही हैं। कोविड के ख़िलाफ़ जो जंग चल रही है उसमें जो भी हम लोगों को सफलता अभी तक मिली है, दुनिया के मुकाबले बेहतर सफलता, उसमें हमारी इन बहनों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। मैं इन सबको हृदय से आज अभिनंदन करना चाहता हूँ और ख़ासकर जो कुछ बहनें जिनका हमें जानकारी मिली है, अनीता हैं, ज्योति है, मार्गरेट हैं, पुणे की और दिल्ली की, इनके प्राण भी जो है कोविड के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ते लड़ते चले गए। उनकी पवित्र स्मृति को भी हम इस अवसर पर नमन करते हैं। और भी बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, दूसरे अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी हों, जिनको भी कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई में किसी भी प्रकार की तकलीफ़ हुई है, उन सब के प्रति भी और उनके परिवारजनों के प्रति भी हम लोग अपनी आज पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। भारत सरकार ने इस लड़ाई के महत्व को रिस्पेक्ट करते हुए एक तरफ कानून में ऐसा परिवर्तन किया है कि किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के ख़िलाफ़, नर्सिंग प्रोफेशनल के ख़िलाफ़ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या किसी भी प्रकार का समाज में उनके साथ दुर्व्यवहार अगर कोई भी करेगा तो उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ हमने ये भी व्यवस्था की है कि डॉक्टर से लेकर और ग्रास रूट लेवल के आशा वर्कर जैसे स्वास्थ्य कर्मी के साथ भी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है दुर्भाग्य से, तो फिर उसका 50 लाख रुपए तक का बीमा भी भारत सरकार ने किया है। और इसके अलावा जितनी भी उनके लिए और बेहतर तरीके से पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स के माध्यम से और दूसरी ज़रूरत की चीज़ों के माध्यम से जो जो व्यवस्थाएं करनी हैं वो सब पर्याप्त मात्रा के अंदर भारत सरकार ने की हैं। मैं आज के इस अवसर पर इन सबको, लाखों अपनी नर्सेज को और हमारी मिडवाइफरी में जुड़ी हुई एएनएम्स को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं। Thank you so much, sir. थैंक यू सर।